నిర్మాణంలో ప్రతి కార్యకర్తను మమేకం చేయాలనే లక్ష్యంగా ఈ అభియాన్ జరిగింది. అందరి అంచనాలను, కరోనా కష్టాలను అధిగమించి ఆన్లైన్ విస్తరణ ద్వారా ఒక వారం రోజుల్లో 1 కోటి పూర్తి స్వచ్ఛమైన మరకలు లేని నిబద్ధత, నిజాయితీ కలిగినటువంటి నిధి సేకరణను సేకరించడం జరిగింది. భవన నిర్మాణంలో కేవలం పూర్వ కార్యకర్తలను మాత్రమే కాక వివిధ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులను, ప్రస్తుత క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలను భాగస్వాములను చేయాలనే లక్ష్యంతో హుండీ కలెక్షన్ను చేపట్టడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం కనెక్షన్ విత్ క్యాడర్ కలెక్షన్ అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయంతో ప్రతి విద్యార్థి తనకు తోచిన నగదును హుండీలో వేసి తన వంతు సహాయంగా నిధి సమర్పణ చేయడం. ఈ కార్యక్రమంతో ప్రతి విద్యార్థిని, కళాశాలలో చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థిని ఏబీవీపీకి దగ్గరగా తీసుకురావడం దీని ముఖ్య లక్ష్యం. 1500 కళాశాల క్యాంపస్లలో 6 లక్షల మంది విద్యార్థులను ఏబీవీపీ ఈ హుండీ కలెక్షన్. विद्यार्थी परिषद में पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में विद्यार्थी सेवा समिति इस ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष मनोहर राव सर, आदरणीय सचिव राजा मोहन जी, प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष शंकर सर, अपने प्रदेश के मंत्री मित्रवर्य प्रवीण जी, अग्रिम पंक्ति में उपस्थित ज्येष्ठ कार्यकर्ता वृंद, संघ के सम्मानित अधिकारी, समाज के विभिन्न वर्गों में काम कर रहे इस महानगर के सभी सुधीजन, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है इस बड़े पंडाल के अंदर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उपस्थित सभी पूर्व कार्यकर्ता वृंद, मैं कहूँ तो एक कंबाइन आंध्र जिस नाम से हम पहले काम करते थे, उसके काम करने वाले सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, पूर्व के अध्यक्ष, मंत्री, यहाँ तेलंगाना प्रांत के
कोने कोने से आए विद्यार्थी कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता वृंद, मैं आप सभी को बधाइयां देते हुए एक छोटे से संदेश के साथ पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। आई एम स्टैंडिंग हियर विद bringing best wishes from Karyakartas from whole of India. Karyakartas from Leh, Ladakh to Andaman Nicobar Islands, from Kutch to Arunachal Pradesh. All Karyakartas are wishing you from bottom of their hearts that this कार्यालय is coming up. एक सुंदर कार्यालय, एक भव्य कार्यालय, और कहें जिस तरह से आंध्र तेलंगाना का काम है उतना ही बाहुबली ऐसा दिखने वाला कार्यालय बन रहा है। मेरे हृदय से जब से अखिल भारतीय स्तर की बैठकों में आना प्रारंभ किया और परिषद के कोई भी अंक, आंकड़े, कार्यक्रम, अभियान देखते तो आधी संख्या के साथ दो प्रांतों में एक प्रांत या कंबाइन आंध्र रहता था। तो ऐसी रचना में हमने आंध्र तेलंगाना प्रांत को देखा है। उसी कार्य को देखते हुए जब आज भवन को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जिस भूमि पे वो बनाए वो विचार की सृष्टि में संग भूमि ऐसा करके प्रतीत होती है। जिस नींव पे बनाए वो इन बलिदानियों की है जिन्होंने विश्वविद्यालयों के अंदर से माओवाद को खदेड़ने का काम किया। जिस भवन को देखते हैं, जिसकी आज दीवारें दिखती हैं, उनके अंदर वो पिलर्स हैं। दोज आर द पिलर्स विच आर इनविजिबल राइट नाउ। दोज आर लाइक गौरी जी, दोज आर ऑफ स्टालवार्ड लाइक हरिहर शर्मा जी, दोज आर लाइक Sheshagiri Rao sir in front of me. We might not see them every day, but they are there strengthening the structure of this Karyalaya. And then there are visible padadikaris in terms of floors of that building and the power of any center, any building, any infrastructure, or for that matter, whole organization. The vibrancy shall be the Karyakartas who will visit every day that very place. It has been written in Telugu media that how students from whole of Mahanagar and whole of state will come and they will witness a vibrant Sphurti center here. And this is my wishes, this is the wishes of Karyakartas whole of India. And with these wishes I have come. आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस भवन के लोकार्पण के लिए, भवन के राष्ट्र के लिए अर्पण के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Sri Sunil ji, very innovative young mind, is the behind the structure, who made the structure very strong and strong. Thank you very much, Sunil. Shashank ji, very creative genius, no very compromise in designing our building. Thank you, Shashank. Our builder Rohit, Rahul ji, though he not compromised anywhere in giving best quality. Those who knows about the civil structure, everybody appreciated the quality of the building. Thank you very much, Rahul. Sri Ajay Mittal ji, our interior designer, he is with us in all this journey and he made the project a great success by staying there on the site. Thank you, Ajay Mittal ji. సార్ ఈ భవన నిర్మాణం అయిన తర్వాత మేము గుర్తుంటామా సార్ అని అడిగేవాడు. ఆ మేస్త్రి గారికి మనందరి కరతాళ ధ్వనులతో చప్పట్లు.
మల్లారెడ్డి గారు మన వాచ్మెన్ నిరంతరము అక్కడే ఉండి భవనానికి అవసరమైనటువంటి రక్షణని 24 గంటలు మనతో పాటు మమేకమైన ఈ కుటుంబం ఇప్పుడు ఏబీవీపీ కుటుంబంలో భాగం. భవన నిర్మాణంలో పాల్గొన్న అందరినీ సత్కరించినందుకు సరసంగ చాలక్జీ గారికి ధన్యవాదాలు. యాదగిరి గుట్ట అనే పుణ్యభూమి ఉన్న తెలంగాణ ప్రజలకి నా నమస్కారం. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तेलंगाना प्रांत के प्रांत कार्यालय स्फूर्ति छात्र शक्ति के उद्घाटन कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी, मनोहर राव सर, राज महेंद्र सर, शंकर सर, भाई प्रवीण एवं इस सभा मंडप में उपस्थित संगठन के वयोवृद्ध एवं अनुभववृद्ध कार्यकर्ता तथा शिक्षाविद, आप सभी को मेरा नमस्कार। सच कहा जाए तो इस तेलंगाना प्रांत के प्रांत कार्यालय का जो नाम रखा गया है स्फूर्ति छात्र शक्ति, वो स्वयं में ही एक सार्थक नाम है, क्योंकि जब हम अपने कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित अपने छात्र संगठन के लिए इस तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले राज जगन मोहन रेड्डी जी, चंद्रा रेड्डी जी, मधुसूदन जी और श्री अन्ना जी की जब हम फोटो देखते हैं तो मन में एक उत्साह आता है और ये समझ में आता है कि जो इस कार्यालय का नाम स्फूर्ति छात्र शक्ति कार्यालय रखा गया है वो अपने आप में ही एक सार्थक नाम रखा गया है। और तेलंगाना प्रांत के अपने इस कार्य के बारे में, संगठन के कार्य, राष्ट्र के प्रेम के बारे में और तिरंगे के सम्मान के बारे में लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की बात क्या करें, उसका एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहती हूं कि जब दिल्ली प्रांत का एक कोई कार्यकर्ता श्यामा जगन मोहन रेड्डी जी की बात सुनता है, उनके जीवन गाथा को सुनता है, तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों को देने की बात सुनता है, तो तेलंगाना प्रांत के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का देश भर में अपने विचारों के प्रति क्या योगदान है, हम ये इसी से समझ सकते हैं कि श्यामा जगन मोहन रेड्डी जी की कहानी सुनने के बाद दिल्ली में स्थित एक साधारण से कॉलेज का विद्यार्थी कहता है कि चाहे चला लो गोलियां पर नहीं रुकेगा मातृभूमि का वंदन, चाहे चला लो गोलियां पर नहीं रुकेगा मातृभूमि का वंदन, लगाऊंगी राष्ट्र हित में नारे, चाहे बन जाऊं दूसरी जगन, चाहे बन जाऊं दूसरी जगन। और मैं आप सबको आज बड़े गर्व के साथ ये बताना भी चाहती हूं कि यहाँ इस सभा मंडप में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जिस श्रम सीकर से अपने इस विद्यार्थी परिषद के वट वृक्ष को सिंचित किया है, उस बीज को सिंचित किया है, आज वो बीज अपने स्वयं के ही सदस्यता के लक्ष्य को तोड़ते हुए पूरे विश्व में 33 लाख से अधिक सदस्यों का संगठन बनते हुए विश्व के सबसे बड़े संगठन का रिकॉर्ड कायम करता है। और ये अगर किसी के कारण हुआ है तो वो हुआ है आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास के माध्यम से जो आप सबने शुरू किया। और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हम जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम किया करते थे, आज वो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के ही कार्यक्रम नहीं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के और परिसरों के सामान्य विद्यार्थियों का कार्यक्रम बन गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब विद्यार्थी परिषद ने अपनी स्वदेश की स्वाधीनता के 75वें वर्ष पर यह लक्ष्य लिया, ये टारगेट लिया कि हम एक गांव एक तिरंगा अभियान के माध्यम से गांव-गांव जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे, तो विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में 1,09,635 स्थानों पर ध्वजारोहण किया। और वो अभियान, वो ध्वजारोहण सिर्फ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं, अपितु समाज के हर एक व्यक्ति के माध्यम से, बस्तियों और झुग्गियों और गांव में रहने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से किया गया था। तो आज विद्यार्थी परिषद सिर्फ
स्वयं के भीतर ही कार्यक्रम नहीं करता, अपितु समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट स्वयं के भीतर हो, उसको ध्यान में देता है। विद्यार्थी परिषद ये भी ध्यान में रखता है कि आज जिस भी विद्यार्थी के पास यदि कोई आइडिया है तो उस आइडिया को प्लेटफॉर्म देने के लिए विद्यार्थी परिषद आज आगे आता है। किसी भी प्रकार का यदि आइडिया है तो उसको विद्यार्थी परिषद अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज जितनी शक्ति हम संगठन के कार्य को तेलंगाना में सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उतना ही अपने संगठन और अपने विचारों को सुदृढ़ करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मणिपुर में भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अंडमान में भी कार्य कर रहे हैं। तो आज भारत का कोई भी राज्य क्यों ना हो, कोई भी कोना क्यों ना हो, किसी भी कोने को हम छूटने नहीं देंगे। प्रत्येक स्थान पर विद्यार्थी परिषद का कार्य हो, और विद्यार्थी परिषद का कार्य सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपनी जयगान करवानी है, अपितु इसलिए ताकि हम भारत के विचार को पुष्ट कर सके, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का जो विचार है वो भारत का विचार है। तो हम उस विचारों को पुष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं अंत में एक श्लोक कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगी, जो मुझे लगता है कि शायद तेलंगाना प्रांत के कार्यकर्ताओं के ऊपर उस पर लक्ष्य भी करता है, वो कि न अभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वयं में ही अपने हिसाब से संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वतंत्र भारतम्मुनु प्रेमिंचुदाम, समग्र भारतम्मुनु साधिंचुदाम। स्वतंत्र भारतम्मुनु प्रेमिंचुदाम, समग्र भारतम्मुनु साधिंचुदाम। स्वतंत्र भारतम्मुनु प्रेमिंచుదాం, సమగ్ర భారతమ్మును సాధించుదాం। అమరుల ఆశయాలు వీరుల పోరాటాలు, అమరుల ఆశయాలు వీరుల పోరాటాలు। ఉద్యమాల గర్జనలు ఉరి కొయ్యల గాథలు, ఉద్యమాల గర్జనలు ఉరి కొయ్యల గాథలు। గుండెలోన పదిలంగా దాచుదాం, గుండెలోన పదిలంగా దాచుదాం। గొంతెత్తి నిత్యం నినదించుదాం, గొంతెత్తి నిత్యం నినదించుదాం। స్వతంత్ర భారతమ్మును ప్రేమించుదాం, సమగ్ర భారతమ్మును సాధించుదాం। స్వతంత్ర భారతమ్మును ప్రేమించుదాం, సమగ్ర భారతమ్మును సాధించుదాం। రంగు రంగు పువ్వులం రమ్యమైన తోటలం, రంగు రంగు పువ్వులం రమ్యమైన తోటలం। పారేసెల ఏరులం ఎన్నెన్నో దారులం, పారేసెల ఏరులం ఎన్నెన్నో దారులం। భరతమాత మనని కలుపు బంధము, భరతమాత మనని కలుపు బంధము। కులమతాలు సిగ్గుపడే చందము, కులమతాలు సిగ్గుపడే చందము। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माननीय पदाधिकारी गण तथा विद्यार्थी सेवा समिति के सभी माननीय पदाधिकारी गण, मंच के नीचे उपस्थित सभी कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता तथा मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आपने अपने परिश्रम से लंबे समय तक सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए एक सिद्धि को प्राप्त किया है। आज हमारे अपने परिश्रम से हमने अपना एक भव्य कार्यालय खड़ा किया। यहां आने के पहले कार्यालय में गया था, मुझे लगता है सब दृष्टि से अच्छा बना है। तो बनाने वाले प्रत्यक्ष जिन्होंने बनाया उसको, उनका भी अभिनंदन, और उनको बनाने में जिनके प्रेरणा और परिश्रम की साथ रही, वो आप सभी का अभिनंदन, क्योंकि ये प्रवास आसान नहीं है। हमने कार्य प्रारंभ किया, वो तो अभाव में ही प्रारंभ किया। अपने पास क्या था? अपने पास कुछ नहीं था, केवल कार्यकर्ता का स्वत्व था, कार्यकर्ता की निष्ठा थी।
और एक दुर्दम्य आत्मविश्वास था कि परिस्थिति कैसी भी दिखे, एक न एक दिन, क्योंकि हमारा विचार सत्य विचार है, न्याय का विचार है, हम इसको सफलता तक ले जाएंगे। और इस विचार से हम लगे। थोड़ा बढ़े तो विरोध शुरू हुआ। अभावों में, अनुकूलता के अभाव में, प्रतिकूलता के बवंडर में काम करने के लिए परिश्रम तो करना पड़ा, पसीना तो बहाना ही पड़ा, खून भी बहाना पड़ा। सत्य और न्याय को लेकर हम चल रहे थे, परंतु ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है हम ही सही है, बाकी सब गलत है। और जब उनके तर्क हार जाते हैं, अनुभव उनके विपरीत जाता है, तो उनके हाथ में दूसरा कोई उपाय नहीं रहता। वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करके सत्य और न्याय को दबाना चाहते हैं, लेकिन सत्य दलभार से नहीं मरता। आया ने उस पेटी को खोला, उसमें देखा, चलिए महाराज हो गया काम। राजा ने भी देखा तो उसमें एक फटा पुराना कोट था। राजा ने कहा ये क्या गड़बड़ है, तुम क्या करते हो, ये क्या तंत्र विद्या वगैरह है क्या? उसने कहा नहीं महाराज, मैं इस शहर में जब आया था भिखारी बनकर आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, केवल एक ऐसा कोट था जो पहन के यहां मैंने काम प्रारंभ किया, धीरे धीरे यहां तक पहुंचा। अब मेरे पास सब कुछ है, आपकी कृपा भी मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये वैभव मेरे बुद्धि को भटकाए नहीं, इसलिए रोज आके मैं अपने इस फटे कोट का दर्शन करता हूं। हम यहां तक आए, कैसे आए? हमारे लिए अच्छा शब्द कहने वाला कोई नहीं था, हमको तो गालियां ही गालियां पड़ी। हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, कोई प्रचार नहीं, कोई सरकार नहीं, हमारे विचार की मान्यता नहीं, कुछ भी नहीं, अनुभव नहीं। तुमको जो प्राकृतिक वैभव मिला है, मानसिक वैभव मिला है, भौतिक वैभव मिला है, वो सब मैं हूं। और शील बल तेज, सत्व बल तेज जहां रहते, वहीं पर मैं जाता हूं। वो चली गई, एक सत्व मांगकर राज्य सहित सब कुछ प्रहलाद का इंद्र ने हरण कर लिया। हम कभी इन साधनों के पीछे नहीं भागे, हम कभी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे, हम कभी झूठे सत्ता स्थानों के पीछे नहीं भागे। हमने अपने शील पर बल दिया, अपने शील को कोटि कोटि हृदयों में जागृत किया। हमारा शील है। विद्यार्थी परिषद में 3 शब्द कहे जाते हैं, ज्ञान, चारित्र्य, एकता। ये हमारा शील है, ये हमारा स्वत्व है। इसके बलबूते हम यहां तक आए। भवन खड़ा हुआ, अच्छा हुआ, सबको स्फूर्ति मिलेगी, सबको उत्साह मिलेगा। कार्य अधिक गति में करने के लिए एक सुविधा मिल गई, उस सुविधा का उपयोग करना, पूरा उपयोग करना। जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता है, वैसे वैसे वैभव भी आना चाहिए। हम वैभव के विरोधी थोड़ी है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये ध्रुवा नीति स्वत्व है, लेकिन उसके साथ श्री, विजय और भूति ये भी चाहिए। लेकिन इसके आनंद में, इसके उत्साह में पथका मार्गक्रमण करते समय ये ध्यान रखना कि इसके हम स्वामी हैं। इसका उपयोग करते हुए हमको अपने सत्व को अधिकाधिक उत्कट, अधिकाधिक प्रखर बनाना है। उसके लिए इस सारे वैभव का उपयोग करना है। बाकी तो आपको आशीष जी ने और निधि जी ने बता दिया है, जो आपको आज याद करना चाहिए। इस एक सावधानी के इशारे के साथ ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझको बुलाया और अपने आनंद में सहभागी कर लिया। सरसंघ चालक मुझे बनाया संघ में, तब से मैं अनुभव कर रहा हूं
कि और तो कोई आनंद मिलता नहीं, लेकिन बार बार लोग ऐसे कार्यक्रमों में बुलाते तो उनके आनंद में सहयोग करने का आनंद हमको मिलता है। जैसे 5 अगस्त में मुझे अयोध्या में आनंद मिला, काम तो आप सब लोगों ने किया, आनंद में मुझे बुला लिया। वैसे यहाँ भी आपने इतना बड़ा काम किया, आज मुझे बुला लिया और मुझे सुन भी रहे हो आप शांतिपूर्वक, इसलिए आप सबका धन्यवाद करता हुआ और पुनः एक बार अभिनंदन करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।